Good morning, everyone. So, today we discuss the one topic remains from the metallic bond semiconductor and their application. This is the last topic of the chapter in which we discussed metallic bond and semiconductor, and this is the last topic application of semiconductors. Applications of semiconductors. So, semiconductor have conductivity in between conductor and insulator. Or we simply say that the conductivity of conductors is greater than semiconductor, and semiconductor conductivity greater than insulators, or insulators does not show any conductivity. Okay, so conductor, semiconductor, and insulator. In the case of conductor, either the valence band is merged with conduction band, or there is a small energy gap in between valence band and conduction band. This is for conductors. Or simply we can recall from here. Let's wait a second. Yes, this one. This is conductor. Sorry, insulators. In insulator, there is a large band gap in between valence band and conduction band. Okay, and this is also called forbidden energy gap because the electron cannot be transferred from the valence band to the conduction band, or electron cannot jump from valence band to conduction band. So there is no conductivity, or there is no flow of the current. But in the case of the semiconductor, the band energy gap, Fermi level in between valence band and conduction band is very low. The gap in between conduction band and valence band is low, so the electron can be easily transferred from conduction band to valence band to conduction band. But in the case of the conductors, these two bands, that is the valence band and conduction band, are merged or overlapped. यहाँ पे जो बैंड्स होते हैं वो ओवरलैप्ड होते हैं. Okay. So basically, here is also written at no band gap, narrow band gap and wide energy band gap. इसमें narrow band gap होता है, मीन्स जो डिस्टेंस होता है वो कम होता है, और यहाँ पे कोई बैंड गैप नहीं होता, वो एक दूसरे के साथ मर्ज्ड होते हैं. सो अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर्स शोज लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस. जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनकी लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं, और जो हमारी डे टू डे लाइफ में अगर हम बात करें उनका सिग्निफिकेंटली इम्पोर्टेंस है. जो हमारे लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं, हम मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उसमें भी सेमीकंडक्टर्स या जो कंडक्टर से रिलेटेड चिप्स होती हैं. डायोड्स हो गए, इंटीग्रेटेड सर्किट्स हो गए, आईसी, एलईडी हो गए, एलईडी बल्ब्स हो गए, एलईडी लाइट्स होगी, एलईडी टीवीज भी होते हैं, एलसीडी जो उसको बोल देते हैं, ट्रांजिस्टर्स हो गए एंड सेंसर्स. सो अगर हम एप्लीकेशन बात करें सेमीकंडक्टर की, एक लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है. सो बट अकॉर्डिंग टू आवर स्टडी और अकॉर्डिंग टू आवर topic, we discuss here two types of semiconductor application. One is the rectifier and second one is the photovoltaic cell. हम दो तरह की उसकी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे. सो अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें, सेमीकंडक्टर हमारे पास दो तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक. सो इफ यू डिस्कस अबाउट सेमीकंडक्टर्स, then we have two types: intrinsic semiconductor and extrinsic. Then further,
Extrinsic semiconductors are two type, N-type semiconductor and P-type semiconductor. Okay, so here we discussing semiconductors. So in that type of semiconductor or the devices like rectifiers, like photovoltaic cells, इन दिस डिवाइसेस बेसिकली होता क्या है कि जो सेमीकंडक्टर का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है उसमें एक टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है और एक टाइप होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो हम उनको पीएन जंक्शन भी बोल देते हैं, पीएन जंक्शन। ओके, दैट मीन्स अगर हम बात करें, एक साइड पी होता है और एक साइड होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो उनको पीएन जंक्शन डायोड भी बोलते हैं, पीएन जंक्शन डायोड। और कुछ केसेस में क्या होता है कि जैसे जो पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम, पी टाइप की दो लेयर होती है और उसमें हम एन टाइप का सेमीकंडक्टर बीच में एज ए सैंडविच कर देते हैं। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एन पी एन। इनको हम बोल देते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। सेम पीएनपी भी हो सकता है, पी एन पी। ओके, एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर। ओके, अगर हमें पीएन टाइप का डायोड बनाना है, सेमीकंडक्टर बनाना है, उसमें हम क्या करते हैं, एक साइड पी टाइप का सेमीकंडक्टर होगा, उसमें हम एन टाइप की इम्प्योरिटी डोप कर देंगे। या सिंपली हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास, इसमें हम क्या करते हैं, जो बोरोन है उसको डिफ्यूज कर देते हैं वन साइड में और दूसरे साइड हम स्लाइस कर देते हैं सिलिकॉन की, क्योंकि बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर हो जाएगा, वहाँ पे होल्स क्रिएट हो जाएंगे। और एन टाइप में जैसे जो सॉरी एन टाइप में हम बात करते हैं डोनर्स एलिमेंट की, और वहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ओके, मेनली बेसिकली इसी में था जो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड था, पीएन जंक्शन, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपीएन ट्रांजिस्टर। ओके, नेक्स्ट हम इसी में देख लेते हैं रेक्टिफायर्स के बारे में अगर हम बात करते हैं। सो हम फर्स्ट एप्लीकेशन देख लेते हैं एज ए रेक्टिफायर्स। बेसिकली जो रेक्टिफायर्स होते हैं हम उनका यूज, रेक्टिफायर्स को हम यूज करते हैं अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करने के लिए, एसी टू डीसी। अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में यूज करने के लिए यूज करते हैं। और जो रिएक्टिफायर्स होते हैं, चलिए ये जो डिवाइस होते हैं बनते हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। सो रिएक्टिफायर्स को हम सिंपली बोल सकते हैं रेक्टिफायर डिवाइसेस obtained by the combination of N and P type semiconductor and also known as NP junction, और इनको हम बोल सकते हैं NP जंक्शन। ओके, और NP जंक्शन होते हैं जो ये क्या करते हैं, सिंपली जो करंट को वैरी करते हैं वो एक ही डायरेक्शन में करते हैं। सो हम कह सकते हैं कि कंडक्ट रेक्टिफायर कंडक्ट करंट इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करते हैं, वो हम उसको नेक्स्ट जब हम देखेंगे उसको हम वहाँ से जब हम डायग्राम की हेल्प से हम उसको आगे फर्दर अंडरस्टैंड करेंगे। ये मैंने आपको बताया है कि द रेक्टिफायर्स आर जनरली यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग या फॉर चेंजिंग द अल्टरनेटिव करंट टू डायरेक्ट करंट। ओके, सो नेक्स्ट। ओके, इसमें क्या होता है, जो मटेरियल होता है, एक साइड में पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है और एक साइड में एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। दैट मीन्स हम इसको इस तरह से ड्रा कर सकते हैं और बीच में होता है जंक्शन। ये है जंक्शन होगा यहाँ पे।
पी टाइप सेमीकंडक्टर, दैट मीन्स हम उसको पॉजिटिव चार्ज से दिखा रहा हूँ। एन टाइप, दिस इज पी एंड दिस इज एन। एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड दिस इज द पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, सिंपली हम कह सकते हैं कि द मटेरियल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ईच जंक्शन इज पी टाइप semiconductor while the material on the right hand side, this is the right side and this is the left side. Okay, the material on the left side of the each junction is p type semiconductor and material on the, this is the junction, the material on the right hand side of the junction is the n type semiconductor. Okay, the minus sign represent the extra electron, the minus sign represent the presence of the extra electron, and the positive charge, positive sign represent the positive holes. Okay, so पॉजिटिव नेगेटिव, हम एक पूरा सर्किट बना लेते हैं, क्योंकि व्हेन वोल्टेज इज सप्लाइड, क्योंकि जो रिएक्टिफायर जो ऑपरेट करेगा जब हम वोल्टेज सप्लाई करेंगे तभी वो ऑपरेट करेगा। इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पी और इधर एन। ओके, so let us suppose that when the voltage is supplied across a PN junction, so that P type region is positive, a P type region is positive and N type region is नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायस, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। ओके, फॉरवर्ड बायस इन द पी टाइप रीजन पॉजिटिव होल्स विल माइग्रेट टुवर्ड द जंक्शन। जो पॉजिटिव चार्जेज है वो क्या करते हैं, जंक्शन की तरफ माइग्रेट करेंगे, और जो नेगेटिव चार्जेज हैं वो भी जंक्शन की तरह माइग्रेट करेंगे। दैट मीन्स अगर मैं इसकी दूसरा मैं बनाना चाहूँ तो जब हम करंट सप्लाई करेंगे, जब ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, जब सर्किट कंप्लीट होगा तो उसमें क्या होगा, ये जंक्शन है, सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डिपोजिट मूव करना स्टार्ट कर देंगे जंक्शन की साइड। ओके, यहाँ पे एन, ए पी और इधर पॉजिटिव चार्ज और इधर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या करते हैं जो हम इसको लिख देते हैं कंडक्ट। कंडक्ट मीन्स यहाँ पे जो करंट है वो फ्लो करेगा। सो in other words we can say that the migration of the electron of the n type region will moves into the, जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या कर देते हैं पॉजिटिव होल्स में माइग्रेट हो जाएगा in the valence band, in the moves, so simply we can say that the migration of the electron n type from the n type region will move into the vacant holes in the valence band of the p type region. Okay, the migration of holes and electron continue indefinitely and current will flow as long as the external voltage is supplied। जब तक external voltage supplied रहेगी तो current क्या है वो continuously flow करता रहता है। और जब हम बात कर रहे हैं पीएन जंक्शन की, ओके, फॉरवर्ड बायस हो गया। दैट मीन्स जो ये हमने दिखाया था कि नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, जंक्शन की तरफ मूव करेगा, और पॉजिटिव चार्ज उधर से दूसरे साइड से दैट इज आल्सो मूव टुवर्ड द जंक्शन। सो यहाँ पे जंक्शन पे क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्रिएट होने स्टार्ट हो जाएंगे, और सिंपली द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स will migrate into the vacant into the vacant holes in the valence band of the p type region। so हम दूसरा देख लेते हैं, when the current is supplied in the positive direction, क्योंकि जो मैंने यहाँ पे लिखा था करंट फ्लो इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, कि जो करंट है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। जब हम
दूसरा अगर मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ, यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव, तो इस केस में क्या होगा कि जो पी एन, यहाँ पे पी एन मैंने लिखा हुआ ऑलरेडी, सो जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस साइड मूव करेंगे, सारे पॉजिटिव चार्ज इस साइड कलेक्ट होने जाएंगे और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कलेक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। दिस इज द रिवर्स बायस। When the voltage is supplied in a positive direction, when voltage is supplied in a positive direction, so यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो करंट फ्लो। ओके, बिकॉज जंक्शन पे क्या होगा, यहाँ पे अगर हम जंक्शन पे बात करें, जंक्शन पे कुछ नहीं होगा, जंक्शन का जो स्पेस होगा वैकेंट होगा। सो इन द रिवर्स बायस, in p-type region the holes will move away from the junction, and in the n-type region the electrons will also migrate away from the junction. So therefore at the junction the current will be depleted and no current will flow. So हम कह सकते हैं कि at the junction there is neither positive holes nor electron and hence no current flow, क्योंकि जंक्शन पे क्या होगा, जो ये जंक्शन है जो मैंने रेड कलर से दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ना तो पॉजिटिव चार्ज होगा ना नेगेटिव चार्ज होगा, तो कोई भी वहाँ पे जो करंट है वो फ्लो नहीं करेगा। Okay, so in the PN junction the permits of the current is only in one direction, only in the case of the forward bias, so current is flow only one direction only. Okay, so next जो इसमें हमें डिस्कस करना है, एक तो हमें एप्लीकेशन एज ए रिएक्टिफायर डिस्कस करनी थी, रिएक्टिफायर, और जो सेकंड एप्लीकेशन रहेगी वो रहेगी इन द फोटोवोल्टिक सेल। ओके, इन फोटोवोल्टिक सेल की अगर हम बात करें, कॉमनली नो सोलर सेल होते हैं, क्योंकि इनमें नॉन मैकेनिकल डिवाइस होते हैं। ये क्या करते हैं, सोलर सेल जल्दी क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। सनलाइट इट कन्वर्ट सनलाइट डायरेक्टली इनटू द इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और सिंपली वी कैन से लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, सो सम फोटोवोल्टिक सेल कैन आल्सो बी कन्वर्ट आर्टिफिशियल लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। आजकल जो लेटेस्ट एडवांसमेंट है उसमें क्या है कि जो आर्टिफिशियल लाइट है उसको भी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। सनलाइट में जनरली हमारे पास सनलाइट किससे बने होते हैं, फोटोन्स होते हैं, विच आर पर्टिकुलर एनर्जी होते हैं, और एक फोटोन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल्स टू एच व्यू। एच व्यू क्या रिप्रेजेंट कर, एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो जो फोटोन्स होते हैं उनकी अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वो डिफरेंट होगी, क्योंकि डिफरेंट वेवलेंथ की जो सोलर में अगर हम बात करते हैं, जो सोलर लाइट आती है उसमें डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट होती है। सो और जो फोटोवोल्टिक सेल होता है वो बना होता है सेमीकंडक्टर मटेरियल का। द फोटोवोल्टिक सेल इज मेड ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो व्हेन फोटोन स्ट्राइक द पीवी सेल, जब एक पीवी सेल फोटोवोल्टिक सेल से जो एक सोलर सेल प्लेट होती है, सोलर प्लेट से जब फोटोन्स आके स्ट्राइक करेंगे, कुछ रिफ्लेक्ट्स हो जाएंगे, कुछ उसमें से पास थ्रू हो जाएंगे सेल्स में से। सम क्या करेगा, जो कुछ फोटॉन्स ऐसे होंगे जिनको सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा, और जो सेमीकंडक्टर मटेरियल जिन फोटॉन्स को अब्जॉर्ब करता है उसी के बाद वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होते हैं और होल्स क्रिएट होते हैं, और जिनकी वजह से जो कंडक्टिविटी है, जो कंडक्टेंस है वो फ्लो करता है। सो ओनली द अब्जॉर्ब फोटोन प्रोवाइड एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जो जिन फोटॉन्स को अब्जॉर्ब करेगा उन्हीं की वजह से इलेक्ट्रिसिटी होगी। Absorption of sufficient sunlight dislodges the electron from the atoms in the semiconductor material। जैसे मैंने आपको कहा है कि जो जिस अब्जॉर्प्शन की जो लाइट सेमीकंडक्टर मटेरियल अब्जॉर्ब करेगा, उसी के कोरस्पोंडिंग वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डिसलोकेट कर देगा, डिसलोजेस द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटम इन द सेमीकंडक्टर मटेरियल। सो स्पेशल सरफेस ट्रीटमेंट ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग मेक्स द फ्रंट सरफेस मोर रिसेप्टिव ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जो उसकी जो फ्रंट सरफेस होता है फोटोवोल्टिक सेल्स का,
वो एक इस तरह के मटेरियल का बनाया जाता है कि वो मैक्सिमम जो लाइट है उसको अपनी तरफ अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। इलेक्ट्रॉन नेचुरली माइग्रेट टू द सरफेस ऑफ द सेल जनरेटिंग एंड इलेक्ट्रिक करंट्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे जनरली? नेचुरली माइग्रेट करेंगे सरफेस ऑफ द सेल की तरफ, या सिंपली हम कह सकते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करेंगे, और जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो करेगा। सो लेट्स स्टार्ट। Photovoltaic cell. The photovoltaic cell is also in a semiconductor. So this is also made in a PN junction. इसमें भी क्या होता है? PN जंक्शन होता है। ओके, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये P है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पॉजिटिव चार्ज जो ये दिख रहा है यहाँ पे, ये होल्स है, दिस इज होल्स, और ये इलेक्ट्रॉन्स है। ऊपर ग्लास की प्लेट होती है, एन टाइप लेयर सेमीकंडक्टर, बीच में जंक्शन, और पी टाइप लेयर होती है जो सेमीकंडक्टर की दोनों बनी होती है, जिसको हम बोलते हैं पीएन जंक्शन। जब भी जो लाइट इस पे पड़ती है, ओके, when a pn junction is irradiated with light in such a way that the energy of the light photon exceeds or equal the energy band gap। जो एनर्जी बैंड गैप है बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, तो उसमें क्या होता है कि जब उस फ्रीक्वेंसी या उस एनर्जी की लाइट उस फोटोवोल्टिक सेल पे पड़ती है, तो क्या होता है कि जो सम बॉन्ड्स है वो ब्रेक होते हैं। जब बॉन्ड ब्रेक होंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, फॉर्मिंग फ्री इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव होल्स। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो विल माइग्रेट करने, इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ माइग्रेट करेंगे? एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ। और जो होल्स हैं वो किसकी तरफ माइग्रेट करेंगे? पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ। ओके, सो एज ए रिजल्ट क्या होगा? जो एन टाइप रीजन होगा उसमें नेगेटिव पोटेंशियल आ जाएगा। जो ये जब ये लाइट इस पे पड़ रही है तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? जो इस तरह से एरो से दिखाए गए इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? माइग्रेट कर रहे हैं। ये हैं इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये है होल्स, होल्स फिल्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव चार्ज होल्स हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल फॉर द सर्किट। और यहाँ पे क्या होता है? ये जंप करते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। एज ए रिजल्ट क्या होगा? जो एन टाइप रीजन विल एक्वायर नेगेटिव पोटेंशियल रिलेटिव टू द पी टाइप रीजन, और इन द एन टाइप रीजन एंड पी टाइप रीजन इलेक्ट्रिकल कनेक्ट, जब उसको एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करेंगे तो एक तो करंट फ्लो करेगा एज लो। जब जब तक इस पे जो लाइट पड़ती रहेगी तब तक क्या करेगा? करंट फ्लो करता रहेगा। और इस करंट को हम बैटरी में स्टोर भी कर सकते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, और जो होल्स थे वो फ्री इलेक्ट्रॉन ने फिल कर दिए, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन से फर्दर वो माइग्रेट हो रहे हैं। और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के माइग्रेशन की वजह से जो फोटोवोल्टिक सेल है उसमें जो करंट है वो स्टोर होता है। और जनरली फोटोवोल्टिक सेल को हम यूज करते हैं कैलकुलेटर्स में। पीवी सेल्स आर यूज्ड इन कैलकुलेटर्स बिकॉज कैलकुलेटर्स को जो एनर्जी होती है वो कम रिक्वायर्ड होती है। ओके, ये सन, यहाँ से सन एनर्जी इस पे पड़ रही है, एक ग्लास प्लेट है, एन टाइप लेयर है, पी टाइप लेयर है। जब ये एनर्जी का इतना गैप होगा कि जो एनर्जी की अमाउंट इतनी होगी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली एक्साइट कर सके, या इलेक्ट्रॉन को इजीली मूव कर सके फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। सो उसमें क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन्स है वो होल्स की तरफ माइग्रेट करने स्टार्ट कर जाएंगे, और होल्स क्या होंगे? वो इलेक्ट्रॉन से ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, होल्स फिल्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जब वो होल्स इलेक्ट्रॉन से फिल्ड हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? माइग्रेट करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल फॉर द टू द सर्किट। अब फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है? वो अवेलेबल है सर्किट के लिए, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर रहे हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर, ये इधर, ये कंटिन्यूसली मूव करते रहेंगे, और एक क्या होगा? ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में माइग्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। और इसकी वजह से क्या, जो मोलिक्यूल है वो जो सेमी मोलिक्यूल से जिस मटेरियल का सेमीकंडक्टर बना है वो कंडक्टिविटी शो करता है। सो we have discussed two application of the semiconductors. One is the rectifier,
as a rectifiers, and second one is as a photovoltaic cell. सो आई होप ये दोनों एप्लीकेशन आपको समझ में आए होंगे। सो थैंक यू सो मच।